Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter Panchayati Raj, which is about the local administration and the local government. And in this chapter we have started our discussion regarding the local level of the government, which is there at the village level, and this is called Gram Panchayat. And we have discussed about the Gram Sabha, which is one of the most important organ of the Gram Panchayat. And we were also discussing the proceedings of the Gram Sabha of Hardas village. Hardas village में जो ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, हमने उसको डिस्कस किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल द विलेजर्स वर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज. वाटर की वहाँ पे कमी है, स्कैरसिटी ऑफ वाटर है, जिसको कि डिस्कस किया गया. लोगों ने इस प्रॉब्लम की तरफ जो पंच मेंबर्स थे और सरपंच थे उनका ध्यान लाया, और ये बताया गया कि जो हैंड पंप्स है उसमें वाटर नहीं आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट द होल विलेज इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर, एंड द वुमेन हैव टू गो टू द सुरू रिवर which is 3 kilometers away from the village, and they are fetching water from that village. So it is causing a lot of trouble for the villagers. So now the villagers are suggesting ways to solve this problem. Like some of the members were of the opinion that piping should be done. Suru river से पाइप से वाटर को अपने विलेज में लाया जाए, एंड देन वहाँ पे टैंक बना दिया जाए. देन वी कैन यूज़ द वाटर, देन देयर विल बी नो नीड ऑफ गोइंग टू द रिवर in order to fetch the water. But this is an expensive idea, that is why it cannot be implemented. It was also decided, and then some of the members were of the opinion that hand pumps की जो ड्रिलिंग है उसको डीपन कर दिया जाए, so that ये वाटर लेवल तक पहुंच जाए और we will get the water, और वेल को क्लीन कर दिया जाए. But DGA was of the opinion that these are only temporary solution. What we need is permanent solution, and for that purpose Anwar suggests watershed development program, which is about the recharging of the underground water and replenishing of the underground water. And people are not very much aware about this program, so it was people were attracted towards this idea, and it was decided कि उसके बारे में अब हम डिटेल से जानकारी ली जाएगी. And then now the people are discussing about the list of BPL, a list of people who are BPL. And in the previous class we have discussed what is BPL, below poverty line. जो भी पुअर है, जो अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको हम पुअर कहते हैं. और गवर्नमेंट ने इसके लिए एक लाइन जैसी इमेजिनरी लाइन बना दी है कि उस उतना अगर किसी को भी सर्टेन अमाउंट जो है वो नहीं मिल रहा है, अगर उससे नीचे उसको अमाउंट वो अर्न कर रहा है, तो ही और सी विल नॉट बी एबल टू fulfill the basic needs, and in that situation they will be called poor, and they are below poverty line, है ना. below poverty line वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट ने जितना फिक्स किया है अमाउंट ऑफ मनी उतना वो नहीं अर्न कर पा रहे हैं, उससे कम वो अर्न कर पा रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ देयर लाइफ. तो हरदास विलेज में क्या हो रहा है कि इस बात का अब देखा जा रहा है कि जो BPL की एक लिस्ट तैयार हुई है, ये कौन कौन से लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, और उस लिस्ट के जो नेम्स है उसको कॉल आउट किया है पंच मेंबर ने. और ये जो नेम्स है BPL लिस्ट में उसको लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, बिकॉज उसमें कुछ ऐसे नाम हैं
जो कि एक्चुअली दे आर नॉट द पुअर पीपल। लाइक नटवर का नाम है क्योंकि नटवर हैज़ just bought a color TV, and not only this, his son has also sent a motorcycle to him. So if Natwar is able to purchase color TV and his son is sending a motorcycle to him, so he will not be considered as poor, क्योंकि poor तो वो हैं जो कि अपने बेसिक नीड्स को पूरे नहीं कर पा रहे। इसी तरह से एक और नाम है इन द लिस्ट, दैट द नेम इज ऑफ बिरजू। और बिरजू के पास बहुत लैंड है, फिर भी उसका नाम बीपीएल लिस्ट में आया हुआ है। तो जब बीपीएल लिस्ट के नेम्स को कॉल आउट होती है तो जो विलेजर्स होते हैं दे स्टार्टेड टू विस्परिंग अमंग देमसेल्व्स कि ये इसका नाम कैसे है, नटवर का नाम उसमें कैसे है, बिरजू का नाम उसमें कैसे है, सूरजमल है, सरोज है, सुखीबाई है। दे ऑल स्टार्टेड टू विस्परिंग विथ ईच अदर, और उनको ये समझ में आ रहा है कि जो नटवर और बिरजू हैं दे आर द फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद। और अमीर चंद जो है वो ही यूज्ड टू बी जमींदार। जब जमींदारी सिस्टम थी तो वो एक ज़मींदार था, बहुत रिच विलेजर है वो, आज भी उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। तो किसी को भी ये बोलने की जिसको कहेंगे हम हिम्मत नहीं हो रही है कि बिरजू और नटवर का नाम बीपीएल लिस्ट में क्यों इंक्लूडेड है। लेकिन साथ ही साथ एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है बीपीएल लिस्ट के साथ कि एक जो जेन्युइन कैंडिडेट है ओम प्रकाश, द नेम ऑफ ओम प्रकाश इज नॉट देयर इन द लिस्ट। जबकि ओम प्रकाश जो है वो एक लैंडलेस लेबरर है, एंड लैंडलेस लेबरर होने के अलावे ओम प्रकाश की जो है वो दूसरे के लैंड पे काम करता है और उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब है। ही इज़ नॉट एबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज एंड हिज फैमिली। तो ऐसे में अगर ओम प्रकाश का नाम बीपीएल लिस्ट में नहीं है तो ये बहुत बड़ी कंसर्न की बात थी। जो विलेजर्स थे वो बहुत परेशान हो जाते हैं ओम प्रकाश का नाम नहीं देखे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, अगर आप बीपीएल लिस्ट में हैं, अगर हमारा नाम बीपीएल में है तो क्या होता है कि हमें बहुत सारे गवर्नमेंट जो होती है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है, बहुत सारे नए नए पॉलिसीज बनाती है इन ऑर्डर टू बेनिफिट द बीपीएल, जो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं उनको बेनिफिट करने के लिए। तो अगर हमारा नाम उस लिस्ट में है तो आई विल बी एबल टू आई विल बी एबल टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स। तो और अगर उसमें हमारा नाम नहीं है तो फिर बहुत हमें कोई भी जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स है उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ओम प्रकाश का नाम नहीं होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात समझी जा रही थी। तो अब जैसे सुखीबाई हैं, सुखीबाई हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि इनका भले ही नटवर और बिरजू के बारे में हम कह पाए न कह पाए, दैट इज़ अनदर मैटर, बट ओम प्रकाश का नाम तो ज़रूर हम लोगों को उसमें डलवाना चाहिए ताकि सो दैट ही विल बी एबल टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो अब ये जो बातें आपस में विस्परिंग हो रही है विलेजर्स के आपस में, तो जो जमींदार हैं, जो सरपंच है, he notices that people are whispering and some kind of unrest is there. So the sarpanch ask that if anyone has anything to say they can say, है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत लग रही है, किसी भी तरह की कोई भी बात है तो वो कह सकते हैं। अब जब सरपंच ने कहा कि आप अपनी बात को रख सकते हैं तो सरोज जो थी वो सूरजमल को प्रोवोक कर रही है। किस लिए प्रोवोक कर रही है? टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू। प्रोवोक का मतलब क्या होता है? प्रोवोक मीन्स उकसाना, है ना। सरोज को खुद हिम्मत नहीं हो रही है बिकॉज इन दैट मीटिंग अमीर चंद इज ऑल्सो प्रेजेंट, है ना। और नटवर और बिरजू तो अमीर चंद के फ्रेंड है,
तो इसको हिम्मत नहीं हो पा रही है. सरोज इज नॉट हैविंग द करेज टू से एनीथिंग अगेंस्ट बिरजू एंड नटवर. सो सी इज प्रोवोकिंग, वो उकसा रही है सूरजमल को कि सूरजमल तुम पूछो कि नटवर और बिरजू का नाम कैसे है ना. इस तरह की चीज़ें होती हैं. हम भी अपने लाइफ में ऐसे काम करते हैं, है ना, कि कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो हमको वी आर नॉट लाइकिंग द थिंग, बट हमारे पास करेज नहीं होता है बोलने का. और उस सिचुएशन में हम क्या चाहते हैं कि जो दूसरा कोई है जो जिसके साथ हम बैठे हैं उसको हम प्रोवोक करते हैं कि वो पूछ ले, ताकि काम भी हो जाए और हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो. हम पूछेंगे तो हो सकता है फिर हमें परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन है कि भाई अमीर चंद तो बहुत रिच फार्मर है, तो वो किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है लोगों के लिए. तो ये चीज़ें इसी तरह से हमारे भी लाइफ में ये चीज़ें होती हैं. और हम क्या होता है मोस्टली वी आर अफ्रेड ऑफ रेजिंग आवर वॉइस अगेंस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल. अगर कोई लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं तो ये हमारे मन में एक डर होता है कि अगर हम उस इन्फ्लुएंशियल पर्सन के अगेंस्ट कुछ भी बोलेंगे तो इट में कॉज ट्रबल फॉर अस, है ना. तो इस कारण से हम क्या करते हैं कि नहीं बोलते हैं. ऐसे सिचुएशंस हम बहुत बारी फेस करते हैं लाइफ में, जबकि चीज़ें गलत हो रही हैं. वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ द थिंग्स की जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, बट वी आर अफ्रेड ऑफ रेजिंग आवर वॉइस अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स. क्योंकि जो डिसीजन लेने वाले हैं दे आर द इन्फ्लुएंशियल पीपल, एंड वी आर ऑफ द ओपिनियन कि अगर उन इन्फ्लुएंशियल पीपल के अगेंस्ट हम जाएंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, है ना. तो ये चीज़ें होती हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना. अगर एक आइडियल सिचुएशन को हम सोचें तो दिस इज नॉट दिस शुड नॉट बी डन. अगर कुछ भी गलत है तो दैट मस्ट बी पॉइंटेड आउट, ताकि उस गलती को सुधारा जा सके. तो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं. और सरोज ने सूरजमल को प्रोवोक किया. स्टिल सूरजमल ने कुछ भी नहीं पूछा नटवर और बिरजू के बारे में, क्योंकि अमीरचंद इज देयर. एंड नाउ सरोज जो है वो जब देख ली कि सूरजमल कुछ भी नहीं बोल रहा है, नाउ सी गेट्स अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी देयर इन द बीपीएल लिस्ट. क्योंकि भले हम नटवर और बिरजू के लिए ना बोले, बट हमें ओम प्रकाश के लिए तो बोलना ही होगा, बिकॉज ही इज जेन्युइनली अ पुअर पर्सन एंड हिज नेम मस्ट बी देयर इन द बीपीएल लिस्ट सो दैट ही कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. तो सरोज जो है वो कह देती है कि ओम प्रकाश का नाम जो है वो बीपीएल लिस्ट में होनी चाहिए. जब सरोज कहती है तो फिर जो अदर पीपल होते दे ऑल्सो अग्रीड that this Om Prakash is a very poor person, and he and his family are not able to fulfill the basic needs of their lives. तो अब ये चीज़ जो है वो सरपंच के सामने आ जाती है कि एक मिस्टेक हुई है कि ओम प्रकाश का नाम उसमें नहीं है. तो सरपंच जो थे वो भी इस बात से परेशान होते हैं कि अगर कोई जेन्युइन पुअर पर्सन है तो his और her name must be there in the BPL list. तो वो कहते ऐसा कैसे हो गया. तो क्या पता चलता है ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जो जैसे लोग होते हैं सर्वे करते हैं, है ना, एक विलेज के अंदर कितने लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, सर्वे होती है और एक पर्टिकुलर पर्सन को जो कि मोस्टली गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनको ये काम दिया जाता है कि वो किसी पर्टिकुलर गांव में देखेंगे कि कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है. तो जब जिसने सर्वे किया था, जब वो ओम प्रकाश के घर गया था तो क्या हुआ था कि ओम प्रकाश के हाउस में लॉक था, है ना, उसके घर में ताला लगा हुआ था. वो कहीं गया होगा, मे बी ही मे हैव गॉन फॉर टू लुक फॉर वर्क, है ना, काम ढूंढने के लिए कहीं गया होगा मे बी. तो जो भी रीज़न हो उसके घर में ताला लगा हुआ था. तो जो सर्वे करने वाले थे उनकी मुलाकात जो है दे कुड नॉट मीट ओम प्रकाश. तो ओम प्रकाश से वो मिल ही नहीं पाए थे, तो फिर उनको ओम प्रकाश के बारे में कुछ भी
मालूम नहीं चला कि उसकी क्या कंडीशन है। तो नाउ दिस मैटर केम अप कि इस तरह की जो एक गलती हुई है। तो सरपंच क्या कहते हैं कि सरपंच ने इंस्ट्रक्शन दिया कि ओम प्रकाश की फैमिली की इनकम, पूरी फैमिली जो है उसकी इनकम को देखना होगा कि कितना इनकम उनका है, और अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर उन पूरे फैमिली की जो अर्निंग है वो उस अमाउंट से कम है जितना कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है पॉवर्टी लाइन के लिए, तो उसका नाम जरूर इन लिस्ट में होना चाहिए। तो दिस इंस्ट्रक्शन वाज गिवन बाय द सरपंच, है ना। और फिर यही उम्मीद की जाती है कि सरपंच ने इंस्ट्रक्शन दिया है तो उसको फॉलो किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हरदास विलेज है उसकी ग्राम सभा की मीटिंग हो गई। ग्राम सभा में यही दो मैटर मेनली डिस्कस किया गया, वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम और अदर देन वाटर शॉर्टेज द प्रॉब्लम ऑफ दिस बीपीएल लिस्ट में जो जो चीज़ें थी उसको डिस्कस किया गया। ओके, तो दिस वाज द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, जहाँ पर सारे ग्राम सभा, जहाँ पर सारे डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत। हियर यू नीड टू बी क्लियर। पहली चीज जो आपको क्लियर होनी है, हम जिस लोकल बॉडी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, दिस लोकल बॉडी इज वर्किंग एट द लेवल ऑफ द विलेज, है ना। जिस एक सिंगल विलेज के लिए भी हो सकता है ये लोकल बॉडी, या फिर अगर विलेज छोटा है, उसकी पॉपुलेशन कम है, तो मोर देन वन विलेज भी एक इस लोकल बॉडी जो जिसको हम ग्राम पंचायत कह रहे हैं उसके अंदर हो सकती है ना। तो विलेज लेवल पे जो लोकल बॉडी होती है उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। क्लियर? अब ये जो विलेज लेवल की लोकल बॉडी है जिसको हम ग्राम पंचायत कह रहे हैं, इस ग्राम पंचायत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है ग्राम सभा, जिसको कि हमने अभी डिस्कस किया। ग्राम सभा में कौन मेंबर होते हैं? ऑल द एडल्ट विलेजर्स आर द मेंबर ऑफ ग्राम सभा, है ना। ये हमने देख लिया। अब हम दूसरी चीज क्या देखेंगे कि इस ग्राम पंचायत जो कि पूरी की पूरी लोकल लेवल की, गांव के लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको हम ग्राम पंचायत कह रहे हैं। इसका एक ऑर्गन है जिसको हम फिर से ग्राम पंचायत ही कहते हैं। यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। पूरी जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट है गांव के लेवल पे, उसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं। उस ग्राम पंचायत का एक ऑर्गन ग्राम सभा है, एक दूसरा ऑर्गन जिसकी अभी हम बात करने जा रहे हैं दैट इज ग्राम पंचायत। अब इस ग्राम पंचायत में कौन होते हैं? हु आर द मेंबर्स ऑफ दिस ग्राम पंचायत? इस ग्राम पंचायत में कौन मेंबर होते हैं? पंच होते हैं प्लस सरपंच। ये छोटी बॉडी है ना। ग्राम सभा तो बहुत बड़ी बॉडी है जिसमें कि सारे के सारे सारे के सारे एडल्ट सिटीजन्स जिसमें मेंबर है ना। तो उसको हम कहते हैं ग्राम सभा। वो बहुत बड़ा ऑर्गन है जिसमें कि सारे मेंबर्स इंक्लूडेड है, गांव के एडल्ट मेंबर्स, है ना। लेकिन यही जो एडल्ट मेंबर्स हैं गांव के, इन्होंने ही क्या किया था? इन्होंने ही अपने पंच को इलेक्ट किया था, जिनको हम उनका रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, है ना। पूरे गांव को वार्ड्स में बांटा गया था। फिर हर वार्ड से क्या हुआ था कि एक एक जो पंच है वो इलेक्ट होकर के आए थे। तो ये जो पंच है और सरपंच, ये भी ही इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द विलेजर्स। ये पंच और सरपंच से मिलकर बनता है ग्राम पंचायत। ओके, तो ग्राम पंचायत जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ये भी है, क्योंकि ग्राम सभा में तो डिस्कशंस हो गए, है ना। अब जो ये ग्राम पंचायत जो है इसकी भी बैठक होती है, इसकी भी मीटिंग्स होती है, बहुत रेगुलर मीटिंग्स होती है। अक्सर ये पंच और सरपंच मिलते हैं, और जब इनकी मीटिंग होती है तो इसमें एक और बंदा होता है। पंच और सरपंच के अलावा वन मोर पर्सन इज देयर एंड ही इज सेक्रेटरी, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो सेक्रेटरी होते हैं वो कौन होते हैं? वो गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है
थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और ये जो सेक्रेटरी होते हैं वो मीटिंग्स बुलाते हैं, दोनों की, ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की, और मीटिंग्स के रिकॉर्ड भी रखते हैं। और जब ग्राम सभा की मीटिंग होती है तो उसमें पंच और सरपंच के साथ साथ ये सेक्रेटरी भी होता है। ठीक है, तो अब जो ग्राम सभा की मीटिंग होगी इसमें क्या होगा, इसमें इम्प्लीमेंटेशन होती है ना। इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लीमेंटेशन? इम्प्लीमेंटेशन का मतलब कि जो भी डिसीजन लिया गया रिगार्डिंग गांव की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो कुछ भी डिसीजन लिया जाता है उस डिसीजन को स्टार्ट कर देना, मतलब काम शुरू कर देना, है ना। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना कोई काम को। जैसे हमने डिसीजन तो ले लिया कि हाँ ऐसा करना है, बट डिसीजन लेने से नहीं हो जाएगा ना, काम को करना पड़ता है, उसको स्टार्ट करना पड़ता है कि कैसे कैसे हम लोग उस काम को स्टार्ट करके काम को पूरा करेंगे, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो जो हमारी ग्राम पंचायत होती है जिसमें पंच और सरपंच जिसके मेंबर होते हैं और जिसकी मीटिंग में पंच सरपंच के अलावे सेक्रेटरी भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये जो ग्राम पंचायत होती है इसका मेन टास्क क्या होता है? द मेन टास्क इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसको वो इम्प्लीमेंट करती है। और इसमें हम ये देखते हैं कि ग्राम पंचायत जो है जो कुछ भी डिसीजन लेती है, जो कुछ भी काम करती है, उसको अप्रूवल लेना पड़ता है ग्राम सभा से। लाइक हमने क्या देखा कि हरदास विलेज में ग्राम पंचायत जो थी उसने बीपीएल की लिस्ट को कॉल आउट किया, जो पंच मेंबर्स थे। फिर उस पे लिस्ट पे जो नाम थे उस पे लोगों के तरह तरह के व्यूज थे, और एक प्रॉब्लम सामने आई लिस्ट के रिगार्डिंग कि एक जेन्युइन पुअर पर्सन का नेम इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट, है ना। तो ये प्रॉब्लम जो आई उस पे ग्राम सभा ने क्या किया? ग्राम सभा इज चेकिंग द फंक्शन विच इज डन बाय द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो से अगर कोई प्रॉब्लम, कोई गलती हो रही है तो ग्राम सभा उस गलती की तरफ ध्यान दिलाई कि आपसे ये नाम छूट गया है, यू विल हैव टू इंक्लूड दैट नेम ऑल्सो। तो ये क्या है? ये ग्राम सभा जो होती है उससे अप्रूवल लेना पड़ता है। कोई भी काम जो ग्राम पंचायत डिसाइड करती है वो बिना ग्राम सभा के अप्रूवल लिए उसको, वो काम को वो नहीं कर सकती है, पहले आपको अप्रूवल लेना है। दिस इज द पावर ऑफ पीपल, क्योंकि ग्राम सभा में कौन मेंबर है? सारे एडल्ट सिटीजन्स जो है वो मेंबर है ना। अब क्या देखते हैं कि जो काम करने का जो तरीका है, कैसे काम होता है। जैसे इम्प्लीमेंटेशन जो है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या होता है ना कि कुछ स्टेट्स में ये हर जगह अलग अलग है, इसमें कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है कि कैसे ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। लाइक कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर क्या किया गया है कि कमिटीज बन जाती हैं। ठीक है, कमिटीज जो होती हैं, कमिटी क्या होता है अभी बता रही हूँ मैं। तो कुछ स्टेट्स में जो सिस्टम हो गया है कि इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कमिटीज आर फॉर्म्ड। लाइक कमिटी जो होती है वो एक, जैसे ग्राम सभा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग, सारे एडल्ट मेंबर्स उसमें मेंबर होते हैं। तो ग्राम सभा जो है अगर उसको कोई काम दे दिया जाए करने के लिए तो इट विल नॉट बी एबल टू वर्क, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं कि वो कुछ काम कर ही नहीं पाएगी, बहुत ज़्यादा होने से प्रॉब्लम आती है ना। तो अब क्या किया जाता है कि इसी में से
कमिटीज बना दी जाती है, छोटी छोटी ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। जो छोटी छोटी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो जिनको एक काम दे दिया जाता है, ठीक है, दे आर असाइंड अ फंक्शन, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को, ठीक है। लाइक एक ग्रुप ऑफ पीपल बन गया जिनको कि कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग काम दे दिया गया, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होना है वो और उसको उस कमेटी को नाम क्या दे दिया गया, कंस्ट्रक्शन कमेटी। कंस्ट्रक्शन कमेटी में सपोज करो 10 मेंबर 12 मेंबर है, और ये कौन से मेंबर होंगे, इसमें ग्राम सभा के मेंबर होंगे और ग्राम पंचायत जो कि 5 मेंबर्स हैं, पंच एंड सरपंच, वो भी इसमें हो सकते हैं, है ना। तो ये जो कमिटीज है इसमें इसको हम कह सकते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। और इसका एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है, ये नहीं कि ये सारा कुछ करती है। जैसे कि हमने देखा ना कंस्ट्रक्शन कमेटी की हम जैसे बात कर रहे हैं, तो दैट कमेटी इज कंसर्न ओनली विद द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। तो इसका एक डेफिनेट फंक्शन होता है। और अगर हम देखें तो ये जो कमिटीज होती हैं ये किनसे मिलकर बनती है, इसमें ग्राम सभा के मेंबर होते हैं एज वेल एज ग्राम पंचायत के भी मेंबर इसमें होते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक पंच मेंबर जो है, जो पंच है हमारे गांव में वो, और जो ग्राम सभा के मेंबर हैं 8-10 मेंबर ग्राम सभा के और एक पंच, इनको मिलाकर के एक कमेटी बना दी गई और उसको एक काम दे दिया गया। तो कमिटी के थ्रू जब काम होता है तो काम क्या होता है, अच्छे से होता है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर वे में होता है। एंड दैट इज व्हाई वी सी कि सम स्टेट्स हैज गॉन फॉर दिस कमिटी सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट किया है ना। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो अगर हम हरदास विलेज पर फोकस करते हैं तो व्हाट वी फाइंड कि ग्राम सभा की तो मीटिंग हो गई, है ना। और ग्राम सभा की मीटिंग में ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सामने आई वो ये आई कि वाटर की शॉर्टेज हो रही है ना, वाटर प्रॉब्लम हो रही है। तो और मीटिंग में ये भी आया बात सामने कि हर किसी ने अलग अलग अपना व्यूज रखा था कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि आफ्टर दिस मीटिंग ऑफ ग्राम सभा ग्राम पंचायत की मीटिंग हो रही है, जिसमें कि पंच, सरपंच और सेक्रेटरी, ये तीनों लोग, पंच तो कई सारे होंगे, पंच सरपंच एक होगा, सेक्रेटरी एक होगा, तो ये सब लोग मिलकर के मीटिंग कर रहे हैं ग्राम पंचायत की। और इस मीटिंग में जो ग्राम पंचायत की मीटिंग हो रही है इसमें ये दिखा जा रहा है कि कैसे जो प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम है वाटर की, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। जो लोगों ने सजेशन दिया उस पर डिस्कशन कर रहे हैं पंच और सरपंच और सेक्रेटरी, ठीक है। तो अब ये हुआ कि जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि क्या किया जाए। सबसे पहले उन्होंने डिस्कस ये किया कि जो सजेशन है कि हैंडपम्प्स को डीप किया जाए और वेल को क्लीन किया जाए, वो सबसे पहले हमें कर देना चाहिए। क्यों? ताकि प्रॉब्लम जो वाटर की हो रही है वो तुरंत ख़त्म हो जाए, लोगों को आसानी से पानी मिल सके। तो पहला काम तो यही करना चाहिए हम लोगों को कि वाटर हैंडपम्प को डीप करें और वेल को क्लीन करें, है ना। इसके बाद जो सरपंच है उनका ये कहना है कि हमारी पंचायत को कुछ पैसे भी है, हमारे पास फंड हमारे पास है, और दिस फंड कैन बी यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हैंडपम्प को डीप करने के लिए जो भी खर्च आएगा उसके लिए पैसे हमारे पास है। वेल की क्लीनिंग के लिए जो भी खर्च आएगा, वी हैव द मनी, वी हैव द फंड एंड वी कैन यूज दिस फंड फॉर दिस पर्पस, है ना। और ये डिसाइड कर लिया जाता है इस मीटिंग में, ग्राम पंचायत की मीटिंग में, कि हमें ये काम कर देना है, हैंडपम्प को डीप करना है और वो वेल को सबकी सफाई करनी है। और जो सेक्रेटरी है वो उनके डिसीजन को रिकॉर्ड कर लेता है कि ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई और ग्राम पंचायत ने ये डिसाइड किया कि ये काम करना है ना। अब इसके बाद इनको ये समझ में आ रहा है कि ये तो ठीक है, हमने शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम कर दिया सॉल्यूशन, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए फिर वही बात होती है जो कि ग्राम सभा में जैसे आई थी बात, अनवर ने कहा था कि वाटरशेड प्रोग्राम जो है वो कुछ गांव में उसको अडॉप्ट किया जा रहा है और उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो अब
ये हुआ कि ग्राम सभा में जब अगली मीटिंग होगी तो फिर मेंबर्स जो है ग्राम सभा के पूछेंगे, है ना, ग्राम पंचायत के मेंबर से फिर वो पूछेंगे कि आपने क्या किया, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने क्या डिसीजन लिया। तो वो कहेंगे कि हैंडपंप वाली बात, तो वो दैट इज नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन, द विलेजर्स वांट सम परमानेंट सॉल्यूशन। तो अब जो पंच है वो उनको ये लग रहा है कि कुछ जो पंच है कि वाटरशेड जो प्रोग्राम है उसको हम लोग देखें, है ना, उसके बारे में हम लोग अगर जाने कि कैसे करना है क्या करना है तो वो एक सही ऑप्शन होगा। और उस पर बहुत सारे डिस्कशन होते हैं कि वाटरशेड प्रोग्राम के रिगार्डिंग जो पंचायत मेंबर्स हैं ग्राम पंचायत के वो आपस में डिस्कस करते हैं, है ना। और उसके बाद यही डिसाइड होता है कि जो ग्राम पंचायत है हमारी लोकल लेवल की वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अप्रोच करेगी और जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है उनसे वो थोड़ी सी जानकारी लेगी रिगार्डिंग दिस वाटरशेड प्रोग्राम, क्योंकि उन लोगों को जानकारी नहीं थी। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ब्लॉक लेवल की बात हो रही है, ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की बात हो रही है, ये क्या होता है। ठीक है।